Hello and welcome back, students. So in my previous video I had to leave at a point where we had just started with the examples. I'll continue with the same point where we will be discussing the examples on this topic, what was quantifiers. Okay, so we have discussed what is an quantifier, then we have also understood the meaning of free variable and a bound variable. We started from here, and we have discussed the meaning of free variables and the meaning of bound variable, then the open statements, and then for all and their exist, and so on. So now the example which we have in front of us, which says that for all the universe of all integers, like p of x, x greater than 0, q of x, x is even. So these statements are there. Write down the following quantified statements in symbolic form. So what we have to do, nothing, but we have to solve this. Okay, now first one, at least one integer is even. This statement, how am I going to write this? At least means there exists, so there exists x, and that x is at least one integer, that x is an integer. Very good. So if there exists x belonging to z, then it is an integer. So how are you going to at least one integer is even. So how are you even q of x? For even you have q of x, that x is even, and for at least I have written there exist, and for integer I have written z. So let me now cross check whether my answer is correct or not. First one, so they haven't written this belongs to sign, which if you write as well and good. If you do not write, then they have simply ended as there exists x, which is an even number. Okay, next, there exists a positive integer that is even. There exists a positive integer that is even. Again, there exists, you have to write there exists x, comma, it's a positive integer, and plus it is even. Positive integer is greater than 0 and even this. So I will write p of x, positive integer, and which is even, that is q of x. P of x and q of x. Next, x is a perfect square. Now statement is some even integers are divisible by 3. Some even integers are divisible by 3. Some, again, there exist divisible by 3 and plus integer. So some even integers, that means you are going to write q of x are divisible by 3, and you have to use the and sign, r of x. ठीक है, sorry, s of x. According to the statement, it will be s of x divisible by 3. Next, every integer is either even or odd. Here you will use the or sign. So for every, now every is for all. So for all x, it is either even q of x or what it's written, or odd. Now I do not have a statement say odd. Do you have something called as odd? No. So you have something called as even, so that negate will be becoming odd. ठीक है, q of x उसका odd हो जाएगा, opposite हो जाएगा. तो answer is for all x, q of x or not of q of x. Then next, if x is even and a perfect square, then x is not divisible by 3. अब देखते हैं ये कैसे लिखेंगे. पहले तो ये इफ़ देन एल्स के फॉर्म में तो इम्प्लीकेशन तो ज़रूर आएगा. ऊपर से यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एक्स इज़ इवन एंड अ परफेक्ट स्क्वायर. एक्स इवन कब है? क्यू ऑफ एक्स में. परफेक्ट स्क्वायर कब है? आर ऑफ एक्स में. तो क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, देन एक्स इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 implies एस ऑफ एक्स for all x. For all x, q of x and r of x together implies s of x. ठीक है, and the answer is same here. Next, if x is odd and not divisible by 7, so I do not have something called as odd, so I will write not of q of x to denote odd. ठीक है, so x not of q of x or, तो और का साइन, is not divisible by 7, not divisible by 7. again not of t of x, देन ये दोनों का और, दोनों नॉट का और डिनोट करता है किस? देन को. देन एक्स इज डिविजिबल बाई 3.
Do I have something called as x is divisible by 3? Yes, s of x. ठीक है, for all x not qx and not of tx implies s of x. So simple. ठीक है, अभी ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. द फॉलोइंग रूल्स आर एम्प्लॉयड फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस पी ऑफ एक्स इज ट्रू ओनली व्हेन पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर ईच एक्स इन एस. पूरा स्टेटमेंट कब ट्रू होगा? जब सारे x जो s को बिलोंग करते हैं वो p ऑफ x की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. सेम व्हाट देयर एग्जिस्ट कि द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट बिलोंगिंग टू s p ऑफ x कब फॉल्स कब होगा? देखो, वो कोई एक x की बात कर रहा है तो यहाँ पे सारे x का सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉल्स होने के लिए सारे x का फॉल्स होना ज़रूरी है. जैसे कि ट्रू करते वक्त दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, फॉल्स के वक्त दोनों का फॉल्स होना ज़रूरी है. तो आप यहाँ पे बोलोगे कि देयर एग्जिस्ट में सारे तो एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तो आपको बस ये चेक करना है कि कहीं सारे एक साथ फॉल्स तो नहीं है. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एंड ये वाला स्टेटमेंट, ये कब ट्रू और फॉल्स होंगे? फॉर ऑल तो तब ट्रू होगा जब सारे एक्स एस को बिलोंग करने वाले पी ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, और देयर एग्जिस्ट कब फॉल्स होगा? जब सारे एक्स एस को बिलोंग करने वाले पी ऑफ एक्स को टुगेदर फॉल्स करेंगे. ठीक है. Now, accordingly, to infer the proposition of the form for all x belonging to s p of x is false, it is enough to exhibit one. एक इसको अगर false ढूंढना है, इस स्टेटमेंट को अगर false प्रूफ करना है ना, तो सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जो उसको false करता है, वो पूरा की पूरा स्टेटमेंट false हो जाएगा. मैंने कहा all the students are intelligent. ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट ले लेते हैं, all the students in my class are intelligent. now, पर एक बच्चा तो इंटेलिजेंट नहीं है, या मैंने बोला all students in my class have passed the examination. बट अगर एक भी बच्चे ने पास नहीं किया है तो मैं ऑल वर्ड नहीं यूज़ कर सकती. ऑल को हटाना है तो किसी एक को गैंग से बाहर करना है, वही यहाँ लिखा है. आई एम सो सॉरी. So it is enough to exhibit one element A of S such that P of A is false. एक कोई कर दो, सारे फॉल्स हो जाएंगे. दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज अ काउंटर एग्जाम्पल, और इस सिचुएशन में हम एक को काउंटर एग्जाम्पल बोलेंगे. अंडरस्टूड. और उसी तरीके से देयर एग्जिस्ट को अगर ट्रू प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट है, तो सिर्फ एक को ट्रू कर दो, पूरा की पूरा देयर एग्जिस्ट ट्रू हो जाएगा. देयर एग्जिस्ट तो यही बोल रहा है ना कि मैंने अगर कहा देयर एग्जिस्ट अ बॉय इन माई क्लास हु कैन अटेंड योर सेमिनार, अब मैंने पहले ही देयर एग्जिस्ट अ बॉय बोला है, तो मुझे क्लास में सिर्फ एक बच्चे की हाँ चाहिए, और वो मेरी बात सच हो जाएगी कि हाँ क्लास में एक ऐसा बच्चा था. ठीक है, तो दोनों ही केस में एक ही ऐसा चीज़ रिक्वायर्ड होता है जिससे हम उसकी ट्रुथनेस या फॉलिसिटी को शो कर सकते हैं, और इनको काउंटर एग्जाम्पल्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, रेफरिंग बैक टू द quantified prepositions 1-4 considered before, we note that all these propositions are true. It is obvious that the following propositions are false. All rectangles are square. क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट नॉर्मल जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो तो स्क्वायर होते ही नहीं. हाँ, उसका उल्टा सही है कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं. फॉर एवरी इंटीजर एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. नो, बिल्कुल भी नहीं. अगर आपने कोई इंटीजर x लिया है तो उसका स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर ही निकले, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. द स्क्वायर्स ऑफ सम रियल नंबर्स आर नेगेटिव. नो, द स्क्वायर्स ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या होता है? दैट द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर फॉल्स. As a consequence of the rule 1 and 2 indicated above, we obtain the following rules of inference. तो कुछ रूल्स और निकाला हमने. पहला है कि अगर एक ओपन स्टेटमेंट है हमारे पास P of X फॉर्म का, ठीक है, एंड इज नोन टू बी ट्रू फॉर ऑल एक्स इन यूनिवर्स, ये सारे एक्स के लिए ट्रू है जो एस को बिलोंग करते हैं, तो P ऑफ 8 भी ट्रू होगा, जिसे रूल ऑफ यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन कहा गया है. उसी प्रकार अगर P ऑफ एक्स एक स्टेटमेंट ट्रू है जिसके लिए आपने कोई एक्स चूज़ किया है जो एस को बिलोंग करता है, then the quantified statement for all x P of x is true. This is called universal generalization. ठीक है, पहली बार में आपने स्पेसिफाई किया ए के लिए, दूसरी बार आपने उसको जनरलाइज कर दिया एक्स के लिए. बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों रूल फ्रॉम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. अगेन आई विल रिपीट दोज रूल्स.
इफ एन ओपन स्टेटमेंट पी ऑफ एक्स इज नोन टू बी ट्रू फॉर ऑल एक्स इन यूनिवर्स, एक स्टेटमेंट था जो एक्स के लिए ट्रू था। अब उसी पूरे सेट ऑफ यूनिवर्स में से मैंने तो कहा ये सारों के लिए ट्रू है, तो अब अगर उसी सेट एस में से कोई एक इंडिविजुअल एलिमेंट निकाल के कहा कि इसके लिए ट्रू है क्या, तो हाँ भाई ऑब्वियसली है, जब सबके लिए है तो ये उसी सेट को बिलोंग करता है, इसके लिए भी ट्रू है। जैसे कि हमने कहा टुमारो ऑल द स्टाफ इज हैविंग एन हॉलीडे, ठीक है। अब मैंने जब बोल दिया ऑल स्टाफ इज हैविंग एन हॉलीडे, तो फिर सबके लिए है। अब इंडिविजुअली किसी मिस्टर एक्स वाई जेड के लिए जाके पूछेंगे कि फिर मिस्टर एक्स वाई जेड को हॉलीडे है क्या, ऑब्वियसली अगर वो स्टाफ है तो उसे भी हॉलीडे है। ये हो गया यूनिवर्सल स्पेसिफिकेशन, यानी किस अगर यूनिवर्सली ट्रू है तो स्पेसिफिकली भी ट्रू है। नेक्स्ट रूल 4 जो था वो बोल रहा था कि इफ एन ओपन स्टेटमेंट इज प्रूव टू बी ट्रू फॉर एनी आर्बिट्ररी एक्स चोजन फ्रॉम सेट एस। एक स्टेटमेंट था जिसको मैंने सेट में से किसी एक के लिए उठा के बोला कि ये ट्रू है, ठीक है। तो हम इन जनरल बोल देंगे कि सारे अगर एक्स के लिए ट्रू है तो उस सेट में बिलोंग करने वाले सारे एक्स के लिए ट्रू होगा। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने अगेन यही छुट्टी वाला एग्जाम्पल उठा के बोले कि हमने स्टाफ में से किसी एक बंदे को उठाया और कहा कि कल तुम्हें छुट्टी है क्योंकि तुम एक स्टाफ हो, तो इस हिसाब से सारे स्टाफ का जो सेट है वो छुट्टी के लिए एप्लीकेबल हो गया। एक के लिए था, सबके लिए जनरलाइज हो गया। ये यूनिवर्सल जनरलाइजेशन है। अगर अभी भी रूल्स में डाउट है तो ये रूल्स सॉल्विंग के टाइम पे बहुत बहुत क्लियर हो जाएंगे। अब टू क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट व्हेन दे हैव द सेम ट्रुथ वैल्यूज। अगर दो स्टेटमेंट्स है हमारे पास और हम जानना चाहते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो इनको प्रूव करना बहुत आसान है। अगर इसकी कुछ ट्रुथ वैल्यू निकालिए, इसकी कुछ ट्रुथ वैल्यू निकालिए, दोनों ट्रुथ वैल्यू अगर सेम है तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट, चाहे वो ट्रू ट्रू में सेम हो जाए चाहे फॉल्स फॉल्स में सेम हो जाए, अगर दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम निकलती है तो वो लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंट है। इन सम सिचुएशन देयर अराइज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म जैसे कि फॉर ऑल एक्स नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स, सच अ स्टेटमेंट इज टेकन टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट एक्स पी ऑफ एक्स। दस फॉर ऑल एक्स नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू फॉर नो एक्स पी ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही सिंपली लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं नज़र आ रहा। इसमें यही लिखा है कि सारे एक्स नॉट बिलोंगिंग टू पी ऑफ एक्स में आपने नो को सामने लिख दिया एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है। तो किसी भी सिचुएशन में अगर आप अपने LHS और RHS की सेम ट्रुथ वैल्यू निकालोगे तो वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल एक्स नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स, यहाँ पे आप इसको बोल दोगे कि फॉर नो एक्स पी ऑफ एक्स। जैसे कि हमने बोला x इज अ ऑड नंबर, ये पी ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल लेते हैं कि x इज एन ऑड नंबर, तो नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स क्या होगा कि x इज एन इवन नंबर। तो फॉर ऑल एक्स नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि x इज नॉट एन ऑड नंबर, ठीक है। तो फॉर नो x, किसी भी x के लिए x ऑड नहीं, अगर वो इवन है तो वो ऑड नहीं हो सकता, एग्जैक्टली ऑपोजिट होना है, दोनों सेट डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया हुआ है फॉर एवरी इंटीजर x एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, ये स्टेटमेंट हमारा p ऑफ x है, ठीक है। फॉर एवरी इंटीजर x एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, तो इसका नॉट ऑफ p ऑफ x क्या होगा कि फॉर एवरी इंटीजर x एक्स स्क्वायर शुड बी नेगेटिव, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होता है। For no integer x square is negative. Similarly, the statement every unit matrix is non-singular. Every unit matrix is non-singular. तो मतलब नो यूनिट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इसका उल्टा क्या होगा कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है। इन जनरल जब फॉर ऑल लिखा है तो उसका निगेशन में देयर एग्जिस्ट आता है, और जब देयर एग्जिस्ट लिखा होता है उसके निगेशन में फॉर ऑल आता है। स्टेटमेंट्स को ध्यान में देखिए तो समझ जाएगा। फॉर एवरी इंटीजर एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। अगर इसका उल्टा बोलूँ तो किसी भी फॉर एवरी इंटीजर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। फॉर एवरी इंटीजर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा कि किसी भी इंटीजर के लिए एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं है। जब मैंने बोला एवरी यूनिट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, हर यूनिट मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो जब मैं बोलूँगी इसका उल्टा बोलो, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स सिंगुलर है।
नो यूनिट मैट्रिक्स इज सिंगुलर, कोई भी यूनिट मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, नो यूनिट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, तो रूल्स फॉर निगेशन ऑफ अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, यही रूल्स को वर्ड्स में जब समझ जाते हैं तो यहाँ पे सिम्बॉलिकली इन्होंने लिख दिए हैं। ठीक है, डिटरमाइनिंग द नेगेशन ऑफ अ क्वांटिफाइड सिस्टम फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द निगेशन ऑफ अ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, चेंज द क्वांटिफायर फ्रॉम यूनिवर्सल टू एग्जिस्टेंशियल और नॉट, जो सबके लिए था वो इंडिविजुअल के लिए हो जाएगा, और वैसे ही देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाता है जब निगेशन लग जाता है तो, और ये निगेशन जो देयर एग्जिस्ट के लिए था वो अब सिर्फ पी ऑफ एक्स के लिए रहता है। तो ये दो स्टेटमेंट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स बोलो, स्टेटमेंट्स बोलो, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल्स में इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं इनको स्क्वायर करके फिर से बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर मैं बोल रही हूँ नॉट ऑफ फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक एक्स नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स। अगेन इसको वर्ड्स में सुन लो मुझसे, फॉर एवरी इंटीजर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, फॉर नो इंटीजर एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर, देयर एग्जिस्ट ही हो जाता है वो। ठीक है, तो इन जनरल ये याद रखना है। अगेन इन्होंने बोला ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर आइसोलीस। इन सिंबॉलिक फॉर्म द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विल बी रेड एज फॉर ऑल एक्स, अगर एक्स एक ट्राइंगल है तो पी ऑफ एक्स ट्रू होंगी, जहाँ पे पी ऑफ एक्स का मतलब ऑब्वियसली होगा कि इट इज एन आइसोसीलिस ट्राइंगल, वे टी इज अ सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड पी ऑफ एक्स इज एन ओपन स्टेटमेंट सच दैट एक्स इज आइसोलीस अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ निगेट स्टेटमेंट। अब अगर इसका निगेट कर दे कि निगेट ऑफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू टी पी ऑफ एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स belonging to T not of P of X. There exists a triangle which is not isosceles. खत्म। अभी इतना देर समझाया कि किसी भी चीज़ को फॉर ऑल से नॉट में डालने के लिए उस पूरे ग्रुप का एक भी बंदा, मतलब अगर छोड़ देता है ग्रुप को तो वो ग्रुप टूट जाएगा। जैसे मैंने बोला फॉर माई ऑल स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, पर एक भी बच्चा अगर मेरे क्लास का स्मार्ट नहीं है तो मैं माई ऑल स्टूडेंट्स नहीं बोल सकती। इसलिए किसी भी ग्रुप को पूरे तरह क्रॉस करने के लिए उसमें का सिर्फ एक बंदे को भी आप क्रॉस कर देते हो तो वो पूरा ग्रुप फॉर ऑल्स की कैटेगरी से हट जाएगा। इसीलिए जब फॉर ऑल को नेगेट लग जाता है तो सिर्फ आपको एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढना है जो आइसोलीस नहीं है, जिससे आप प्रूव कर दोगे कि सारे ट्राइंगल आइसोलीस नहीं होते। ठीक है, वैसे अगर मैंने कहा ऐसा एक भी बंदा नहीं है दुनिया में, ऐसा एक बंदा है दुनिया में जो ये फलाना करता है, अगर इसका उल्टा बोलना है तो मतलब मैं सीधा बोलूँगी ऐसा एक भी बंदा नहीं है दुनिया में जो ये कर सकता है। ठीक है, तो इसका जब नेगेट लिया तो देयर एग्जिस्ट हो गया टी नॉट ऑफ पी ऑफ एक्स। इन अदर वर्ड्स, इफ इन वर्ड्स फॉर्म यू विल स्टेट, यू विल राइट कि फॉर सम इक्विलैटरल ट्राइंगल और देयर एग्जिस्ट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विच इज नॉट आइसोलीस एंड इक्विवेलेंटली सम इक्विलैटरल ट्राइंगल आर नॉट आइसोलीस। Thus for the statement all equilateral triangle are isolis, the negation statement will be some equilateral triangle are not isolis. As another example, consider the quantified statement some integers are even. So when I write some integers are even, I say there exists an x belonging to z category which is even p of x. अब इसका उल्टा करना है, पहले हम ध्यान से सुने, एक ऐसा इंटीजर है जो इवन है, इसका उल्टा बोलो। एक भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो इवन है, एक भी नहीं है मतलब सारे इंटीजर ऑड है। ठीक है, तो वे z is the set of all integers and x is even according to the rule of negation, the negation of the quantified system, ये statement will be कि ऐसा एक भी नहीं है। for all x I can now say that belong to z, sorry to say, but x is not even, that means it is odd. ठीक है, so no integer is even. One more example they have given, that is for divisible by 7. The proposition is logically equivalent to for any even integer x is not divisible by 7. For any यानी एक भी नहीं। In symbolic form this is read as कि for all x there exist not of, for all x belonging to E category means even, not of P of x वो even नहीं है।
again for all x belonging to E, for any even integer x belonging to E, not of p of x, it is not divisible by 7. p of x बोलता है divisible by 7, not of p of x बोलेगा not divisible by 7. तो E even integers है, p of x is x divisible by 7. According to the rule of negation, the negation of this quantified statement will be कि ऐसा there exists an x belonging to integers, even integers which is odd या which is divisible, which is not divisible by 7. अगर p of x divisible by 7 है तो not of p of x होगा, वो divisible by 7 नहीं है. And symbolically, in the word form it will be not even integers is divisible by 7, or you can write some integers is divisible by 7, and so on. There are many examples. In the next class I will take an example to this topic. There are many examples, you can keep practicing. I will take few examples, no doubt, but this is homework because more of this has been covered in the class. You can definitely take this examples in your home, and in your free time you can keep solving, and definitely time and again I tell you that please ask me if you have doubts. So in the next video I'll try to cover these examples as much as I can. There is so many examples and so many exercises with answers. The best part is in each and every video I've said that you are lucky that these exercises are with answers. So please go through this. Thank you so much.